Let us get started. Today we have a matching activity on page number 8 of the textbook, maths textbook, and let us see what do we have. So activities, because they're on this page as well. Count and join the right number. So before you start this counting and joining, ask your child first thing. There are different numbers written on these blocks. Ask them which number is this. Now this is number 4. How about this one? 3, 1, 2. And if they tell you if they are telling the wrong number, ask them again to tell you the number. Now why do we use the dodging technique? Why are we not starting exactly from number 1 and 2 and 3 and 4? Because if you're doing the dodging, it helps them to recognize the number, because sometimes the kids, they just know how they start, like 1 2 3 4. They remember them. If you ask them, they'll say 1 and 2 and 3 and 4. So the more you do the dodging practice, the more they will recognize and learn that this is not number 2 or this is not number 4. They'll know that this is number 4, 3, 1 and 2. So let us now match. You can give them different colors for this. Let us start with dark blue. Oh, what is this? Well, these are cups. Yes, and a cup starts with K. So how many cups do we have here? 1, 2, 3, 4. Let's count together. If you are counting like 1 2 3, and always tell them to count in a sequence, in a line, because if they are counting up and down and not in a proper sequence, sometimes they get confused. So 1 2 3 4. Now tell me, where is number 4 in these blocks? Is this number 4? No. Is this number 4? Yes, this is number 4. Good. Now let us match the cups with number 4. What is this? This is a bus. Bus. And what is the color of this bus? This is a red bus. So tell me, how many buses do we have here? We have only one bus. Now where is number 1? Here with the green block. Very good. What are these? These are clocks. Clocks. And they are in different colors: green, mustard and red. Let us count these. 1 2 3. Now where is number 3? Is this number 3 or this number 3? This is number 3. Yes, good. And how many caps do we have? Look, cap. So this is blue and this is green. Let's count. 1 2. Where is number 2 in these blocks? This one? Yes, correct. Very well done. So we have learned about counting and matching. And which numbers are these again? 4 3 1 2. Very good. So this is maths classwork for today, and that's it. And let us see the Urdu work right now. Let's move toward that. करेंगे उर्दू का काम, और उर्दू में हम इस वीक में जो लेटर सीखने वाले में वो है टेटा। अब टेटा के ऊपर ये तवा होता है, ये अलग से ख़ुद से एक हर्फ भी है, और ये बहुत सारे जो उर्दू के और लेटर्स हर्फ हैं उनमें भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि दाल में होता है, रे में होता है। तो हमें ये लेटर अलग से सीखना पड़ता है, जैसे टे में है। तो हम इसको कहते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, जब ये किसी हर्फ के ऊपर आता है तो हम कहते हैं कि ये उसकी टोपी है। तो हम कहते हैं कि टा के पास क्या है? एक टोपी है। तो आज हम करने लगे हैं टोपी की प्रैक्टिस, कि हम टोपी कैसे लिखते हैं, बिकॉज़ उसका लिखना आना बच्चे के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो हम अगर उसको प्रैक्टिस करेंगे लिखने से पहले तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो आज हम सिर्फ़ और सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और वो है सफ़ा नंबर 32 पे। चलेंगे, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे जमात का काम और लिखेंगे तारीख, जो कि है 22 जून 2020। और हमें यहाँ पे जो हिदायत दी गई है वो ये है कि ट्रेस कीजिए। थोड़ी सी बुक मेरी खुल नहीं रही, लेकिन यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ट्रेस कीजिए। तो चलें हम इस बुक पे ट्रेस करते हैं।
इसकी ट्रेसिंग के लिए आप बच्चों को बताएंगे कि ये उनको ये बोलते हैं कि ये एक लफ्ज़ की टोपी है। ये एक हम आगे बे के ख़ानदान का एक लफ्ज़ सीखने जा रहे हैं, उसके ऊपर एक टोपी होती है, तो हम पहले उसकी टोपी बनाना सीखेंगे। तो इसकी टेक्निक क्या होती है, डॉट दिया है, सबसे पहले आप ऊपर से एक सीधी लाइन लगाते हैं जिसे इंग्लिश में स्टैंडिंग लाइन कहा जाता है। आप एक लाइन लगाते हैं नीचे तक ऐसे, ये पहला स्टेप होता है। और दूसरा होता है आप एक कर्व्ड लाइन बनाते हैं इस तरह। तो टोपी के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लगाएंगे एक सीधी लाइन और फिर हम लगाएंगे एक कर्व्ड लाइन। ये ट्रेसिंग में इतना मुश्किल नहीं होता जब ये इतना बड़ा लिखा हुआ है, सॉरी, लेकिन जब ये छोटा सा लिखने को उनको ट्रेसिंग के लिए मिलेगा तो उनको लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम पहले से इसकी ट्रेसिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि जब हमें बाद में इसका काम करना पड़े तो हम बच्चों को वो काम इंडिपेंडेंटली दे सकें कि हमें उनका हाथ ना पकड़ना पड़े। जैसे आप यहाँ पे देख लें, ये बहुत छोटा लिखा हुआ है। तो इसलिए पहले हम इसको ट्रेस कर रहे हैं। ये है आज का पेज जो ट्रेस करना है ताकि हमें अगले आने वाले काम में आसानी हो। तो यह है आज का क्लास वर्क उर्दू का, इंग्लिश का और मैथ्स का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और अब मैं आपको इसके बाद बताऊँगी आज का होमवर्क। Let's see the homework for today. We have on English page number 19 of the workbook. Okay, I've written down the classwork and the homework and the date, which is June 22nd, 2020. Color the objects that starts with the alphabet Eh. So what are they going to do first? Although we've done this before, we are going to first learn these things and then we are going to color them. So what is this? Elephant. Elephant. Egg. Envelope. Engine. Ear. And the I also starts with so elephant, egg, envelope, engine, ear. So we are going to color the letter E. Let us color it green. So make sure that they do it nicely with small strokes, their letter and they can use any color for filling it up. And then they have to use different colors. Gray here, they can use peach here, envelope whichever color they want, peach in the ear, and the engine, it should be any color they want, black and red, or any color that they like to fill it up with. You can use red and green, yellow and green, yellow and blue. It's quite a tricky picture. You can also use only one color if they are having problems. So this is the homework. Elephant, egg, envelope, engine, ear. So this is our English homework. Let us see our Urdu homework. तो आज हमारा उर्दू का जो होमवर्क है वो है खुशखती के ऊपर, सफ़ा नंबर 10। चूँकि आज हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं टोपी लिखने की, तो तवा की, बेसिकली ये तवा है, तो हम तवा की प्रैक्टिस कर चुके हैं लिखने की। अभी हम करेंगे प्रैक्टिस होमवर्क में भी। आप क्लास वर्क में भी प्रैक्टिस करवाएंगे और होमवर्क में भी इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 22 जून 2020 घर का काम लिखिए। तो इधर भी उसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जैसे कि मैंने आपको वर्कबुक में बताया। तवा की, इस तवा को हम टोपी बोलते हैं। ये हम लगाएंगे एक लाइन ऊपर से नीचे, और फिर जैसे कि हमें तीर की मदद से बताया गया है कि हम इस डॉट से यहाँ से शुरू करके ये कर्व लाइन बनाते हैं। तो पहले आप सिर्फ स्टैंडिंग लाइन लगाएंगे, ये लाइन नहीं लगाएंगे। ओके, तो जब आप ये वाला ट्रेस करेंगे नीचे वाला, तो हम ये लाइन लगाएंगे यहाँ तक और फिर इसको ट्रेस करेंगे। हम शुरू कहाँ से करेंगे? यहाँ से,
ऑल्दो ये आके वापस जाना होता है, इस तरह की इंस्ट्रक्शन दी गई है, लेकिन मैं आपको जो बताऊंगी ताकि बच्चे उसमें कंफ्यूज ना हो। हम ऊपर से नीचे आएंगे और फिर आप यहाँ से भी शुरू करवा सकते हैं कि वो, तो जब वो ये प्रैक्टिस कर लेंगे फिर वो ये नीचे वाला प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे। क्योंकि अभी उनको ये बताना कि डबल लाइन दोबारा पीछे आए थोड़ा सा बच्चों के लिए ट्रिकी हो जाता है, तो उनकी आसानी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि हम पहले यहाँ तक आएंगे और फिर आप इसको, ये टीयर ड्रॉप जो शेप है, आंसू की जो शेप है, उसको हम ट्रेस करेंगे। तो ये था हमारा आज का होमवर्क और क्लास वर्क भी आपने देख लिया। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम है या आपको समझ नहीं आती, आप हमेशा मुझसे पूछ सकते हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले सेशन में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।